Okay, so my presentation is visible for you. Yes, sir. Yes, sir. My presentation is visible or Yes, not? sir. Visible. Yes, Okay, sir. okay, okay. So in the last lecture, we have covered about some review factor, some remembering factor about the electrical and electronics engineering. So in the so we have covered about the application part of the electrical engineering, that the latter half in the 19th century. We have discussed about that the latter half in the 19th century, the electrical the application of the electrical energy in basically in the electric telegraph, in the telephone, in the electric power distribution. And we have discussed about the area which is emerged from the electrical engineering nowadays, which is the electronics, digital computers, and power plant engineering, radio frequency engineering, control system, signal processing, and the telecommunication. We have already discussed about the same thing, and now and we will discuss about the basic difference. We have discussed about the basic difference between the electrical and electronics engineer, कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया था कि अप टू मतलब द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 240 वोट टू द सम किलोवाट और मेगावाट अप टू है, ओके. और फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्यू only limited to 24 watt. कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बेटा काइंडली म्यूटेड योर माइक, काइंडली म्यूट योर माइक. Okay, thank you very much. So electrical engineers are usually concerned with the use of electricity to transmit the electrical power, and the electronics engineer are generally interested in using the electricity for the purpose of processing the information. Okay, so we have discussed about the old fact, and we have discussed about that when the starting the 1880s, the electricity is considered as a part of the physics, and then the Darmstadt University firstly started the electrical engineering department in the 1882. And the first bachelor's degree in electrical engineering is started by the Massachusetts Institute of Technology and the Cornell University, है ना, with the collaboration. And then we have discussed about the forerunner of the Triple E. Then we have discussed about the William Gilbert. The William Gilbert is a scientist, or you can say he is a first electrical engineer. वो एक first electrical engineer थे जिन्होंने किसको डिस्कवर किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट को डिस्कवर किया. एंड he also designed a versorium, a device versorium which detect the presence of static charge. उन्होंने एक वर्सोरियम नाम की एक डिवाइस भी बनाई जो क्या करता था कि जो चार्जेस होते हैं, जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, जो आवेश होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, उनके प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, बताता है कि यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस हैं, ओनली डिटेक्ट करता है, नॉट फॉर द मेजरिंग पर्पज, ओनली फॉर द डिटेक्शन पर्पज. मतलब ही यूज द वर्सोरियम डिवाइसेस. So we have discussed about the Alexandro Volta. As the name of Volta, the unit of voltage is given by as the name of Alexandro Volta. In 1775, he designed the electrophorus, which produced the static electric charge. Actually, the basic difference between the versorium and electrophorus, क्या डिफरेंस है वर्सोरियम और इलेक्ट्रोफोरस में, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन कैन टेल सर मी. वर्सोरियम स्टैटिक चार्ज को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट Sir, करता है, versorium detects the static charge. एंड और वोल्टा तो Uh, स्टैटिक चार्ज को प्रोड्यूस करता है. create करता है. वोल्टा नहीं, इलेक्ट्रोफोरस. वोल्टा इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. इलेक्ट्रोफोरस, यस सर, इलेक्ट्रोफोरस, He यस सर. designed a device, electrophorus, which produced the static electric charge. And in 1800, he designed a voltaic pile, the forerunner of nowadays battery. 1800 के अंदर उसने क्या किया, एक वोल्टेक पाइल नाम की डिवाइस बना, एक डिजाइन की डिवाइस बनाई उन्होंने, जो कि आजकल जो हम लोग बैटरी यूज में लेते हैं, ये सेम बैटरी का कंसेप्ट वोल्टेक पाइल से ही आया था. Actually, the voltaic pile, the forerunner of the nowadays battery.
मतलब ये है कि वोल्टेक पाइल जो आज जो बैटरी हम लोग यूज में लेते हैं उसके लिए एक माइलस्टोन की तरह काम किया, उसके लिए एक मोटिवेशन के लिए काम किया वोल्टेक पाइल ने, वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दिया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट देन 1800 वोल्टेक पाइल डेवलप्ड बाय अलेक्जेंड्रो वोल्टा, है ना। And the figure is shown by the right hand side, this figure, है ना। The first plate is made by the copper, second plate is made by the zinc. It's a combination of copper zinc, copper zinc, copper zinc plate, and between one copper and one zinc plate there is a element, there is a one element is called electrolyte, which is called electrolyte, which is called electrolyte. In 1831 the Michael Faraday discovered the electromagnetic induction. 1831 में एक माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कंसेप्ट था उसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट को डिस्कवर किया। वन सेकेंड बेटा, वन सेकेंड, someone want to enter in the, तो in 1831 the Michael Faraday discovered the electromagnetic induction, the concept of electromagnetic induction. And then finally 1873 the concept of electromagnetism is given by the James Maxwell, James Maxwell is a scientist name. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो कंसेप्ट था वो 1873 में जेम्स मैक्सवेल ने दिया था। इट्स गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल, द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल, और दीज एप्लीकेशन इज कॉल्ड द मैक्सवेल इक्वेशन। और जो ये इक्वेशंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल ने जेम्स मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दी वो हम लोग बोलते हैं उनको मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, so in 1888, it's interesting fact, these are the interesting fact. 1888 the spark gap transmitter is developed by the Heinrich Hertz. अच्छा, क्या काम करता है ये स्पार्क गैप ट्रांसमीटर? which transmit and receive the radio signal and made by Heinrich Hertz. Am I audible for you? Yes, Am I sir. audible to you? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. Heinrich Hertz designed a device named spark gap transmitter, which transmit and receive the radio signal. हेनरिच हर्ट्ज ने एक डिवाइस बनाई 1888 के अंदर जो कि ट्रांसमिट करती है एंड रिसीव भी करती है रेडियो सिग्नल्स को, और इसी के नाम पे क्या किया गया, जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हर्ट्ज, वो इसी के नाम पे है हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। 1941 Conrad Jules introduced a first ever programmable computer, okay, Z3 computer, and 1947 this is the year of invention of transistor. ये ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन का ईयर था 1947. In 1958 integrated circuit is developed by the Jack Kilby. Jack Kilby is the name of scientist. Integrated circuit IC जिसको तुम बोलते हो IC. तो ये जो IC सर्किट है ये किसने सबसे पहले डेवलप किया? जैक किल्बी ने किया 1958 में, ओके। और 1968 में माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जो प्रोसेसर तुम लोग कंप्यूटर्स में यूज करते हो, अभी जो इंटेल का चल रहा है, अभी फिलहाल लेटेस्ट जो इंटेल्स के आते हैं 5th जनरेशन 7th जनरेशन, तो उससे पहले सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आए थे, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये सेम मतलब प्रोसेसर का ही डेवलपमेंट होता आज इंटेल ने मतलब 7th जनरेशन का और इस तरीके अलग अलग जनरेशन डेवलप कर लिए। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फील्ड ऑफ स्टडी कि हम लोग इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड को स्टडी करेंगे। तो वी अबाउट द पावर, इन द पावर फील्ड वी कैन जनरेट, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी। इन द कंट्रोल फील्ड डिजाइन द डायनेमिक सिस्टम एंड कंट्रोलर फॉर द सिस्टम। In the electronics and in microelectronics field, design of the integrated circuit, you can say the IC circuit and microprocessor etc.
In the signal processing, analyze the signal, and you study about the amplitude modulation, frequency modulation. FM सब सुनते हो? FM सुनते हो ना? FM 93.5, हाँ सर, सर हाँ सर। नो सर, नो FM मिर्ची, रेड FM, है ना? इट्स तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी होती है उनकी। ये जो तुम लोग लगाते हो 93.5, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। 93.5, 94.1, जो भी मतलब चैनल आते हैं, 100.3, 100.1, तो दीज आर द फ्रीक्वेंसी रेंज, दीज आर द हायर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का काम स्टार्ट होता है, जहां पे हम लोग ये एफएम यूज करते हैं। तो एफएम नाम ही वहीं से आया। हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन, देख, सिग्नल मॉड्यूलेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ सिग्नल मॉड्यूलेशन, एंड द सिग्नल मॉड्यूलेशन हैज द टू टाइप, द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. There are basic two type of the signal modulation. Amplitude modulation, if we modify the amplitude of the any signal, then it's called amplitude modulation. If we modify the frequency range of any signal, then it's called frequency modulation. तो जो लोग आप सुनते हो, जो सॉन्ग सुनते हो एफएम के ऊपर, वो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एक एग्जांपल है, इसीलिए उसका नाम एफएम है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया गया है। ठीक है। इन द टेलीकम्युनिकेशन, आप लोगों ने टावर्स देखे हैं, मोबाइल टावर्स देखे हैं, वॉइस डेटा देखा है। तो डिजाइन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इन द फील्ड ऑफ वॉइस डेटा, इन द फील्ड ऑफ वॉइस डेटा such type of, in the field of computer science, design and development of the computer system. In the instrumentation side, design of sensors, different types of the sensors, and data acquisition equipments which is used for the controlling purpose. So we already discussed about the ohm. Actually, George Simon Ohm is the name of scientist which gives the Ohm's law. जो ओम्स लॉ जो दिया था, वो जॉर्ज सिमोन ओम ने दिया था इन 1827, जो कि क्या बताता है? एक रिलेशन बताता है। इट्स अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल करंट एंड द potential difference between the conductor. It's a relation between the electrical current I proportional V, the potential difference. It gives the relation between I and V, I proportional V. So you can write here I equals to V by proportional coefficient 1 by R. And this proportional coefficient is called resistance, and the unit of this resistance is called ohm. The unit of this resistance is called ohm, and this overall rule is called Ohm's law. इस पूरे नियम को हम लोग बोलते हैं Ohm's law, इस पूरे रूल को। I is proportional V, I is equal to proportional साइन मैंने हटाया, तो एक proportionality constant मैंने यहाँ पे पुट किया, जिसकी वैल्यू है 1 by R. So we can write here V by R. So in the next step you can write V equals to R I. V equals to R I. That's the Ohm's law. And this R is called the resistance of any conductor. And the unit of this resistance is ohm, which is drawn by such type of sign, है ना? ओम इस तरीके से होता है ना, ओम का जो सिग्नल, ओम का जो होता है साइन, कुछ इस तरीके से, ये ओम है। ठीक है। सो द नेक्स्ट साइंटिस्ट मिशेल फैराडे। ठीक है, ठीक है। मिशेल फैराडे, ही डिस्कवर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। एक्चुअली इनको ये भी बोलते हैं कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल मोटर का फाउंडर बोलते हैं इनको। इलेक्ट्रिक जो मोटर है, जो हम लोग यूज में लेते हैं घर में पंपिंग पर्पस के लिए, we use for the domestic purpose, for the pumping purpose, in household applications. These electric motor is developed, the principle of these electric motor is given by the Faraday. Okay, and the main invention is given by these electromagnetic induction. He gives the principle of electromagnetic induction, he gives the principle of dimagnetism, and he gives the principle of electrolysis process. In the electrolysis process,
we use a liquid, some type of the liquid and some type of the plate. The plus charges is one side and the negative charges is one side by using the electrolysis process. Okay, the next scientist is Nikola Tesla. Okay, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि टेस्ला कार, टेस्ला कंपनी भी है अभी फिलहाल, एक टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है। तो टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, हाँ, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। ओके, सो अभी जो ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, टेस्ला कार चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, टेस्ला कार बहुत अच्छी चल रही है, जिसका पेटेंट इन लोगों ने ड्राइवरलेस कार सर, ड्राइवरलेस कार। यस 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 यस। तो निकोला टेस्ला is the name of scientist developed the transformer and the induction motor used in AC. Induction motor used in AC. The Faraday gives the principle of electromagnetic induction, but Nikola Tesla developed a physical model of induction motor. Okay, and he also invented the induction motor, alternating current, जिसको बोलते हैं AC current, टेस्ला कोयल, नियॉन लैंप, रिमोट कंट्रोलिंग, ये सब रिमोट कंट्रोलिंग टेस्ला ने दी थी सबसे पहले। एंड वायरलेस टेलीग्राफी का मतलब समझते हो आप लोग? डू यू नो अबाउट द टेलीग्राफी? टेलीग्राफी इज द वे ऑफ मैसेज ट्रांसफरिंग, है ना। बहुत पुराने टाइम में जब मैसेज जाते थे तो बोलते थे ना, तार आया है, टेलीग्राफ आया है तुम्हारा, तो उसको बोलते तार। तो उसको वो क्या था कि दैट वाज नॉट ए वायरलेस कम्युनिकेशन, वो वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं था। टेलीग्राफी इज नॉट ए वायरलेस कम्युनिकेशन इन द ओल्ड डेज। तो उसमें क्या था कि पहले वायर हुआ करता था, बट टेस्ला ने क्या किया कि उसको वायरलेस कर दिया। विदाउट वायर देयर इज ए टेलीग्राफी, यू कैन सेंड द मैसेज बाय टेलीग्राफ मेथड। ठीक है, यूएसए ने एक डाक टिकट भी मतलब उस पे जारी की थी, डाक टिकट बनाई थी उसके लिए निकोला टेस्ला के ऊपर 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना। अब देयर इज अ चेंजेस अकर्ड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हाट इज द चेंजेस? इन द बिगिनिंग ऑफ 1830s एफर्ट्स वर मेड टू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ टेलीग्राफ। 1830 तक तो क्या था कि एक एफर्ट था कि स्टार्टिंग में टेलीग्राफ ही एक ऐसा एप्लीकेशन था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द डेवलपमेंट ऑफ द लैंडलाइन फोन, सबमरीन केबल एंड द वायरलेस टेलीग्राफी आल्सो इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ पे होने लग गया? लैंडलाइंस के अंदर भी होने लग गया, सबमरीन जो केबल्स होती हैं उनके अंदर भी होने लग गया, और जो टेलीग्राफी, निकोला टेस्ला ने टेलीग्राफी को वायरलेस बना दिया, तो वायरलेस टेलीग्राफी में भी इसका यूज होने लग गया। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द यूनिट। ओके, सो इट लेट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन and advances in the field created an increasing need for standardized unit to measure। अब मेजरमेंट के लिए हमें कुछ यूनिट्स भी चाहिए थी, कि वोल्टेज को मेजर करना है तो किस यूनिट में करना होगा, करंट को मेजर करना है तो किस यूनिट में करना होगा, कैपेसिटेंस को मेजर करना है तो किस यूनिट में करना होगा, इंडक्टेंस को मेजर करना है किस यूनिट में करना होगा। तो देयर वाज ए बिग कंफ्यूजन। So to remove this confusion, it led to the international standardization of the unit। एक कमेटी बनी, एक यूनिट बनी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की, जिन्होंने यूनिट्स दी, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम्ब चार्ज की, है ना, चार्ज यूनिट, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट, फेरड एंड हेनरी, फेरड फॉर द कैपेसिटेंस यूनिट, है ना, विच इज द नेम ऑफ माइकल फेराडे, and Henry is the name, also name of the scientist, है ना, it's a unit of inductance, Henry। तो जिन साइंटिस्ट ने भी इनको डेवलप किया, इनका मॉडल प्रपोज किया, उन साइंटिस्ट के नाम से ही इन यूनिट को बनाया गया। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में, दिस वाज अचीव्ड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन शिकागो इन 1893। इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जिसने भी जो भी कंट्रीब्यूशन जिस साइंटिस्ट ने दिया है, उस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसकी जो यूनिट है उसी साइंटिस्ट के नाम पे रख दी जाए। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा?
Yes, sir. Is it clear? Yes, Okay, sir. okay, okay. Yes, Thank sir. you. Oh, okay, okay. In 1882, so next fact देखो आप लोग, ये fact है only, ये याद नहीं रखना है, बस इसको देखना है, देखो fact है, it's interesting fact. In 1882, the Thomas Edison. What do you know about the Thomas Edison? Invented the Thomas bulb. Edison के बारे में आपको very good, very good. Electric bulb. है ना? He invented the bulb, and so many devices or so many applications is also developed by Also Thomas worked for Edison. DC. He worked for DC also. Yes, yes. DC. Was बिल्कुल. Actually, the main contribution is that he provided 110 volt direct current for the 59 customers on Manhattan Island in New York City. सबसे पहले डीसी के ऊपर जो काम करना स्टार्ट किया था वो थॉमस एडिसन ने स्टार्ट किया था। 110 वोल्ट को इसने प्रोवाइड करवाया, डीसी वोल्ट प्रोवाइड करवाई 110 वोल्ट, और उसका एप्लीकेशन किसके ऊपर किया? 59 कस्टमर्स ऑन द मैनहट्टन आइलैंड इन न्यूयॉर्क सिटी। ओके, सो लार्ज स्केल जो इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क इसने दिया 110 वोल्ट का, वो थॉमस एडिसन था जिसने फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क 110 वोल्ट का दिया। थॉमस एडिसन के जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस हैं? यू कैन सी हियर। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, जो पहले जो येलो कलर के से जो बल्ब दिखते थे एलईडी से पहले, उनको बोलते हैं ये वाले जो बल्ब जो बनाए थे, ठीक है, ये बनाए इन्होंने, थॉमस एडिसन ने बताया, ठीक है। फोनोग्राफ क्या है कि रिकॉर्डिंग का मेथड भी है, जो आज तुम लोग सीडी, डीवीडी, कैसेट्स यूज करते हो, उससे पहले फोनोग्राफ हुआ करता था। तो फोनोग्राफ एक म्यूजिक डिवाइस है जिसमें हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिमियोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन माइक्रोफोन, ठीक है। और मिमियोग्राफ क्या है? जेरोक्स मशीन। द ओल्ड टाइम जेरोक्स मशीन इज कॉल्ड मिमियोग्राफ। तो फर्स्ट मॉडल इज गिवन बाय एनी जेरोक्स मशीन गिवन बाय द थॉमस एडिसन। इन्होंने सबसे पहले एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जेरोक्स मशीन बनाई थी, मिमियोग्राफ जिसको बोलते हैं। मिमियोग्राफ का मतलब यही है कि सिमिलर, मिमियो इज मींस द सिमिलर एंड ग्राफ दैट प्रोवाइड द सिमिलरिटी। तो द कॉपी, तो जिसको बोलते हैं ना कॉपी प्रोवाइड करवाना है, इट्स ए कॉपियर सेट। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी इसने काम किया, कार्बन माइक्रोफोन्स एंड क्वाडप्लेक्स टेलीग्राफ, जिसमें एक साथ 4 सिग्नल को हम लोग एक ही वायर के थ्रू हम लोग सेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला क्वाड्रुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि एट ए टाइम 4 सिग्नल पासेस थ्रू ओनली 1 वायर। At a time 4 signal can passes through only 1 wire, so it's called quadruplex का मतलब यही है कि 4 सिग्नल को हम लोग एक ही वायर के थ्रू 4 सिग्नल हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। फिर फोनोग्राफ सिलेंडर, जो फोनोग्राफ के अंदर सिलेंडर लगता था वो, एंड द मूवी कैमरा इज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय द थॉमस एडिसन। तो इट्स अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द थॉमस एडिसन। देख रहे हो आप लोग कि इसने कैसी कैसी मतलब जो इन्वेंशन किए हैं और कितने नेसेसरी हैं, जो आज के डेली लाइफ में कितना जरूरी है। मूवी कैमराज, जो मैसेज को भेजने का, फोटोकॉपी, जेरोक्स मशीन का, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरा कंसेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट, वो इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। बट द ऑल ओवर दिस स्टडी आवर मेन एम टू अटेंड दैट द हाई एफिशिएंसी and the minimum transmission loss in the electrical network. There is only two major aim to get the high efficiency and to get the minimum transmission loss. So know something, the telegram service ends in India by 15 July 213, ठीक है। 2013 के अंदर 15 जुलाई 2013 को टेलीग्राम जो सर्विस हुआ करती थी, जिसको बोलते तार की सर्विस जो बोलते थे, ठीक है, वो इंडिया में खत्म कर दी गई थी, उसको एंड कर दिया गया था उसका सर्विसेज का। द टेलीग्राम सर्विस एंड्स इन इंडिया बाय 15 जुलाई 2013, ठीक है। एंड दिस टेलीग्राम सर्विस इज, हाँ इसमें सर वो टेलीग्राम कैसे काम करता था?
सर टेलीग्राम कैसे काम करता था? बेटा टेलीग्राम इट्स रियली इज बोलते बहुत पुरानी एक डिवाइस होती थी, जिसके अंदर क्या होता था कि हम लोग, ये जो नीचे डायग्राम देख रहे हो तुम लोग इधर की तरफ राइट हैंड साइड में, ये वाला डायग्राम, यस सर। ये टेलीग्राम का डायग्राम है, टेलीग्राम का डायग्राम। इसमें क्या होते थे, कोड्स होते थे, कोड्स। तो उन कोड्स पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये जो दिख रहा है तुम्हें हैंडल, एक आदमी क्या करता था, इन हैंडल को बार बार इस तरीके से करता था, जैसे 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसे ABCDEFG, तो ऐसे इनके लिए 2 बार 3 बार ऐसे कोड होते थे, ठीक है। तो मेरे को ए पुश करना है, सपोज दैट, देखो मेरे को पूरी कोडिंग इसके पता नहीं है टेलीग्राम की किस तरीके से काम करती थी। सपोज दैट कि ए के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बार इसको बटन को टक टक करूंगा, बहुत तेज आवाज आती थी इसमें, टक, ए हो गया। बी के लिए मैं 2 बार करूंगा, टक टक, तो वो ए बी लिखता था। फिर ए बी के बाद में जैसे मान लो किसी को लिखना है होप, तो एच के लिए मान लो कि 10 बार था, ओ के लिए 15 बार था, एंड पी के लिए 16 बार था, या ई के लिए, मैं एक रैंडम ले रहा हूं एग्जांपल, ई के लिए 5 टाइम्स था। तो पहले इस तरीके से करता था, फिर इस तरीके से करता था, फिर इस तरीके से करता था। इतनी बार प्रेस करने के बाद में एक गैप देना होता था कि होप, होप सो लिखना है मेरे को, होप यू आर डूइंग गुड। तो होप के बाद में यू लिखना होता था, होप के बाद में एक गैप देना होता था, गैप के लिए एक अलग कोड होता था। तो इस तरीके से इनको बार बार दबाया जाता था। तो वो वहां इस कोडिंग फॉर्म में, इस डिकोड किया जाता था मैसेज को इस तरीके की फॉर्म में, और वहां जाके वो कोड होता था, जहां पे जाना होता था इसको कोड किया जाता था। तो मैसेज इस तरीके से पहुंचते थे, ठीक है ना, पुराने टाइम में। तो ये टेलीग्राम सर्विस थी जो कि इंडिया में इट्स एंड इन इंडिया बाय 15 जुलाई 2013, एंड दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आल्सो। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ करता था इंडिया में भी, ठीक है ना। तो अभी ये जो हमने रिव्यू पार्ट किया है, दैट्स रिव्यू पार्ट, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस रिव्यू पार्ट और नॉट, यू कैन टेल मी। आफ्टर दैट I am also sharing a video link to you, which is also play prerequisite to study in the electrical engineering and electronics engineering. मैं एक वीडियो भी प्ले करूंगा अभी तुम्हारे पास में, एक यूट्यूब पे एक वीडियो, जो कि क्या है, दैट शो द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ टू ट्रांसमिट इट यूर एंड, and how to transmit at your end. Okay, so don't waste the energy, don't waste the power, है ना। जब भी आप कभी भी कोई स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं, तो एक बार ये वीडियो जरूर देखें कि किस तरीके से, कितनी दिक्कत के साथ, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करके जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो आप लोगों के लिए 24/7 काम करते हैं, और आप उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखो, है ना। मैं अपनी क्रोम टैब शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ में। I am sharing with my screen with you, my Chrome tab with you. So kindly is it audible for you? Yes, sir. Audio is coming, but it's improper. This video is audible or visible for you? Yes, sir. It's visible. The audio is also coming, but it's slightly improper. So send the link on WhatsApp. Okay. Who
us hasn't left the TV on even though we're not watching? जो subtitles चल रहे हैं, the subtitle running on the video end, है ना? You can also read it, है ना? You should read it, the subtitles also. So you have the some help regarding the video. So now play the video. I'm sorry for the interruptions. Who hasn't left the lights on even though we're not in the room? Nowadays, electric power is regarded as a common commodity. Just as the sun rises every day, we believe that electricity is simply there. Electricity appears to be a straightforward issue. You press the button and we have instant electricity. It's as if it's hidden in the socket. But is this really how it is? Just one look out of the window reminds us that electric power comes from somewhere. It travels along the cables on the pylons of the Hellenic Public Power Corporation. If we follow these cables, we might be able to discover where it comes from. In Greece, the largest amount of electrical power is generated in Western Macedonia. 6 in 10 houses get their electricity from the electric power stations in this area. Western Macedonia is the heart of the electrical energy in our country. Let's look then at how electrical energy that we take for granted is generated. In Western Macedonia, there's a large quantity of coal known as lignite. With the use of large machines, it is mined from the ground. Some of the machines are taller than an 18-story building and weigh more than 5,000 cars. After lignite is mined, it is taken. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. एक्चुअली इस वीडियो में ये बताया जा रहा है आपको कि किस तरीके से पहले ये बताया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना. यू थिंक दैट द यू पुट द योर प्लग इन द सॉकेट्स एंड you get the electricity, but the concept behind दिस इलेक्ट्रिसिटी इज दैट कि ये लोग काम कर रहे हैं. कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले कोल आ रहा है, कोल कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये कोल जनरेटिंग साइट्स पे जाएगा. Into the electricity generating power plants on conveyor belts. In all of the Western Macedonia, there are 270 kilometers of conveyor belts. This is 1.5 times the distance from Florina to Thessaloniki. When the lignite arrives at the station, the process of energy production begins. First, it goes into a furnace burner where it is burnt. From the combustion, smoke is produced, which escapes through the stacks of the power station. The burner generates heat, which heats up a large water tank known as... फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, ये कोयल एक फर्नेस के अंदर जाता है जहाँ पे बर्न होता है ना. इन द फर्नेस एंड वी यूज द कोयल टू बर्निंग, है ना. बर्न होने के बाद में जो हीट है इस कोयल की, ये इस वाटर जो टैंक होता है इसको बॉयलर बोलते हैं. बॉयलर, इट्स कॉल्ड द बॉयलर. इस वाटर टैंक को बॉयलर बोलते हैं. इस बॉयलर में जो वाटर होता है उसको हीटअप करता है ये, और इस हीट से स्टीम क्रिएट होती है, स्टीम बनती है. वो स्टीम कहाँ पे जाएगी? टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर, जनरेटर के ऊपर. देखना, The water that is heated in the boiler becomes steam. The high pressure steam goes into a turbine. The turbine has large bladed rotors, just like the sails of the windmill, which, pushed by the steam, rotate at a high speed. In turn, these bladed rotors activate a magnet that generates the electric current. This magnet is part of a device known as an electric generator.
Lastly, the steam is separated. Some of the steam is distributed to the surrounding cities and villages by a network of pipes to provide heating. This process is known as district heating. The remaining steam cools, condenses into water, and goes back to the boiler for reheating. Steam is used for chilling by spraying the pipes which convey it with water. The water evaporates and is released into the atmosphere through those characteristically large, thick cooling towers that appear to be forming clouds in the sky. Combustion, steam, turbine, electrical generator, electricity. So student, have you seen the video? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, in the first step, Yes, the sir. coal come through the conveyor belt into the furnace. In the furnace, the coal is burnt, and this burning heat is provided to the water, which is contained in the boiler, and by heating this water, there is a steam, high pressure steam is generated, and this high pressure steam, when injected to a turbine, which is also coupled to the generator. The turbine blades rotate, then generator is also rotate, and finally we got the output, electricity output at the output end. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट स्टेज में जो कोल था, लिग्नाइट कोल था, जो कोयला था, वो यहाँ पे आया इस फर्नेस में। फर्नेस को भट्टी बोलते हैं हिंदी में। इस फर्नेस में आते उसको क्या, उस कोल को बर्न किया गया, जलाया गया। उसकी हीट से क्या किया गया, पानी को गर्म किया गया इस बॉयलर में, इसको बॉयलर बोलते हैं इस टैंक को। इस हीट, जब पानी को गर्म किया तो स्टीम बनी, क्योंकि वाटर को जब गर्म करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे, तो एक स्टीम बनती है। ये हाई प्रेशर स्टीम को जब प्रेशर के साथ में इस टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर इंजेक्ट किया गया, तो टरबाइन ब्लेड्स ने घूमना स्टार्ट किया, और ये कपल्ड की गई, ये मैकेनिकली कपल्ड है जनरेटर की शाफ्ट से। जनरेटर की जो शाफ्ट होती है उससे मैकेनिकली कपल्ड होता है ये, और जनरेटर ने मूव करना स्टार्ट किया। और जनरेटर जब मूव करने स्टार्ट करेगा, तो इसके आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी। जो रिमेनिंग स्टीम है वो हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के लिए दे दी गई, ठीक है। एंड जो बची हुई जो और स्टीम्स हैं उसको कंडेंस किया गया। कंडेंस का मतलब यहाँ पे ये है, उसको कूल किया गया, ठंडा किया गया, और वापस से उसको बॉयलर के अंदर पुट कर दिया गया पानी बनने के बाद में। क्लियर? और ये तुम्हारी चिमनी भी, उसको बोलते चिमनी है ये, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, जो पोल्यूटेंट जो एयर होती है वो निकलती है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से किस तरीके से जो जनरेशन हो रहा था उसके बारे में आप लोगों को बताया गया, और कैसे किस तरीके से बना, कैसे क्या हुआ, ये सब तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया गया। सो बिफोर वेस्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, काइंडली कंसिडर इट कि कितनी दिक्कत के साथ में ये सब चीजें हो रही हैं, कितनी दिक्कत के साथ में तुम्हें सब चीज पहुंचाई जाती है एक कंज्यूमर एंड के ऊपर। when the electricity generated at the generation side, then it transmit through the transmission line and distribute among the consumers like you, है ना। तो ये जब इतनी मेहनत के साथ में कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, कितने टेक्नीशियंस काम करते हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट व्हेन यू वेस्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। So don't waste the electricity, and don't misuse the electricity. I am only saying that. Okay. So have you any problem in it, in the introductory slides? Have you any problem in the introductory slide? So, No, sir. okay. No, sir. So in the next slides, we will start with the electricity basics. In the next slide, we will start with the electricity basics, in which we will discuss about the charge creation, charge definition of charge formation, and after that types of the charge, and the voltage, what is voltage, what is current, the unit of voltage, unit of current. Then we will discuss about the resistors, ठीक है,
and the different combination of the register, series combination, there are a parallel combination, there are a series parallel combination of the registers. So we will discuss about these all fact in the next lecture. So you should prepare about the basic facts. So if you have any problem regarding this subject, regarding the this presentation,